presentation of clothing construction. The first thing is, what is clothing construction? Clothing construction is a garment construction, apparel or dress is a construction by the cutting of the fabric into parts according to the pattern which fit the human body or form. Then the different parts are joined together by sewing. So we can say in the clothing construction we include pattern making and garment construction. First we start with pattern making. Pattern is a term used for two-dimensional blueprint of any garment design on a paper on the basis of which the fabric is cut. Generally there are two terms used for this, drafting and pattern making. First we discuss drafting. Drafting is a method to develop a pattern from body measurements. It is really one reliable way even for a beginner to make a master pattern that proves to fit exactly after each part and all positions. अगर हम किसी भी चीज का ड्राफ्ट बनाते हैं, it's a basic draft. So ये reliable pattern है. Drafting is a reliable pattern because ये इंजीनियरिंग मेथड है. इसमें हम टेक्निक यूज करके ड्राफ्ट में एक हम ड्राफ्टिंग प्रिपेयर करते हैं. ये मेथड है, ये दे रखा है, ये इंजीनियरिंग मेथड है. मेरे पास में कोई नहीं है, कुछ भी ओनली खाली मेजरमेंट्स है जिसमें मेरे को एक बॉडीज ब्लॉक बनाना है. ओनली फॉर द बॉडीज ब्लॉक के लिए मेरे को क्या करना होगा, खाली मेजरमेंट चाहिए और उस मेजरमेंट के लिए मैं टेक्निक्स और फॉर्मुलेज यूज करूंगी जिससे कि मेरा एक इस टाइप से एक बॉडीज प्रिपेयर हो जाएगा. It is drafting. It is an engineer type method based on a set of body measurements. Success in drafting depend on the accuracy of the set of measurements. अगर मेरे measurements लेने में accuracy नहीं है तो it is not important कि मेरा जो pattern है वो बिल्कुल accurate बनेगा और जिस बंदे का मैंने मतलब जिस human figure का मैंने वो बनाया है वो उसे fit होगा. Pattern making. There are two related terms for the method by which the patterns are made: flat pattern method and draping method. Flat pattern method, the flat pattern works start with a commercial basic pattern. The pattern work consists of changing the basic pattern to create a new design. Work is done on paper on a flat surface. For dress designing, there are 5 basic pieces: front blouse or bodice, back blouse or bodice, front skirt, back skirt and sleeve. I am clear the difference between drafting and pattern making. This is a draft. No one is added in it, but in this draft we are mention the symbols and indicators like on fold, grain, center front or back, shoulder, side waistline, side seam and a measurement block. So this will be turned into a pattern. Draft only a basic foundation of any body figure. This here we show a pattern is a A-line skirt. And prepare a A-line skirt. We use a basic drafting basic pattern which we cut to, we close the start and prepare a A-line skirt and show the borders for the marks for bustier. to इस बॉडीज से हमने एक बस्टियर बनाया है, तो उसके लिए जो हमने बॉडी मेजरमेंट्स जो है वो ने थोड़ा सा चेंज करा है, जिसमें डार्ट्स इंक्लूड कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन. सो हमने यहाँ पे बॉडी से बस्टियर में से कन्वर्ट करा है. जो हम कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा कन्वर्टेशन होता है वो भी हमारा पैटर्न मेकिंग का ही पार्ट होता है. जो हमारा बेसिक ड्राफ्ट होता है उससे हम कुछ भी ऐड करके कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें 5 पीस बेसिक 5 पीस रिक्वायर की जरूरत होती है. फिर नेक्स्ट है ड्रेपिंग. इन ड्रेपिंग मेथड द फैब्रिक इज ड्रेप्ड डायरेक्टली ऑन द ड्रेस फॉर्म और फिगर. द फैब्रिक पैटर्न इज देन ट्रांसफर्ड ऑन द पैटर्न.
and after certain correction is then finally converted to a final pattern. ये ड्रेपिंग का मैंने आपको एक पिक्चर शो करा है. इसमें हमने नॉर्मल ड्रेप करा है गारमेंट को. यहाँ पे हमने पॉइंट्स मेंशन करे हैं. अब हम इसे डमी पे से निकाल करके पूरी एक आउटलाइन क्लियर कर लेते हैं, जो कि हमारी स्टिचिंग लाइन हो जाती है. सेम हियर, ये फ्रंट एंड बैक पूरा इसमें फोल्ड करके ड्रेप कर रखा है. फैब्रिक टर्म्स, मसलिन. Some fabric terms are used for the garment construction. Muslin, a plain weave cotton fabric, mostly unbleached, which common in different weight and used to check the drape of the pattern. Grain, the direction of the yarn in a fabric. The warp are lengthwise grain and weft are crosswise grain. मैम व्हाइट बोर्ड नहीं है वो. White board नहीं है. आईपी बोर्ड है. So सैलवेज, अब इसमें लेंथ वाइज ग्रेन जो फैब्रिक होता है उसमें इस टाइप से जो लेंथ वाइज होते हैं वो सारी लेंथ वाइज होती है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो वेफ्ट ग्रेन होती है. सैलवेज, फॉर्मली वोवन एंड फिनिश स्ट्रिप ऑन अ साइड ऑफ फैब्रिक इज सैलवेज. गोइंग फैब्रिक हुज ग्रेन इज नॉट अ परफेक्ट इज 90 डिग्री. अगर हम अपने फैब्रिक चेक करें या कोई भी फैब्रिक चेक करें तो उसमें जो वीव की जो क्रॉसेज होती है वो 90 डिग्री पे बनी होती है. मीन्स अगर ओवरलैप होती है पूरी, इसमें भी आप देख सकते हैं ये तो वो पूरा से 90 डिग्री पे आता है. जो अलग जाते हैं ऑफ ग्रेन होते हैं वो गोइंग होते हैं, मतलब जो लाइन्स होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो नीचे की तरफ जारी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती, 90 डिग्री पे नहीं होती है वो. टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पैटर्न मेकिंग. मेजरिंग टूल्स, measuring tape, ruler, L square, grading scale, curve tool, hip curve, French curve, pinning tools, pens, pencil, tailor chalk, carbon paper, tracing wheel, cutting tool, small scissor for cut the thread, paper scissor, paper cutting scissor and fabric cutting scissor, sewing tool, needle, thread, seam ripper, sewing machine, pressing tool, iron and iron table, shoulder board, और हेम आयरन करने के लिए होता है, जैसे इसमें ये है, ये हेम आयरन करने के लिए होता है. जो कर्व्स एरिया होती है जैसे आर्म होल होता है उसे हमें आयरन करना होता है तो हम इसके लिए यूज करते हैं. ये स्लीव बोर्ड है, ये हमारा स्लीव के लिए यूज करते हैं आयरन टेबल और स्टीम फैन. मेजरमेंट, सम मेजरमेंट्स टोटल 20 to 22 बॉडी मेजरमेंट्स यूज्ड इन पैटर्न मेकिंग टू टेक मतलब हम बॉडी का अगर मेजरमेंट लेते हैं तो हम टोटल 20 to 22 बॉडी मेजरमेंट्स लेते हैं कोई भी गारमेंट बनाने के लिए. बट हियर आई एम शो द कॉमन मेजरमेंट्स. बस्ट, वेस्ट, हाई हिप, लो वेस्ट लेंथ, शोल्डर लेंथ, आर्म होल डेप्थ, बैक विड्थ और नेक. प्रोसेस सीक्वेंस ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग. हियर वी शो द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीक्वेंस ऑन industrial basis. Design and sketching, pattern design, sample making, production pattern, grading, marker making, spreading, cutting, sorting or bundling, sewing, assembling, inspection, pressing or finishing, final inspection, packing and dispatch. First we discuss design and sketch. अगर हम कोई भी गारमेंट बनाना शुरू करें तो उसके लिए हमें पहले एक स्केच की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हमारे पास स्केच नहीं होगा तो फिर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं. एक आइडिया होना ज़रूरी होना चाहिए. तो इसके लिए पहले हमारे पास में एक डिज़ाइन होता है, जैसे डिज़ाइन है. इन द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग द फर्स्ट स्टेप इज डिज़ाइन टू स्केच फॉर द ड्रेसेस दैट हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सेकेंड है पैटर्न डिज़ाइन. सपोज हमारे पास में स्केच आ गया, अब हमें पैटर्न डिजाइन करना है तो वो पैटर्न डिजाइन जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. पैटर्न ऑल्सो इंक्लूड सीम अलाउंसेस, ट्रिम अलाउंसेस, डार्ट्स, प्लीट, ईज अलाउंसेस, एनी स्पेशल डिजाइन एक्सेट्रा अफेयर्स. पैटर्न डिजाइन could also be done manually or with the help of the computer. Nowadays we use CAD and CAM. So we prepare this and sample making. First we prepare a sample. I think we have heard what you have to say. I just want to know from you, can you do CAD and CAM also? No ma'am. You cannot. So you can do only pattern making as in on paper and
Yes, ma'am. I am making only pattern making garment construction on paper and grading also and draping also. ड्रेपिंग ऑल्सो यू Yes. सो ड्रेपिंग का जब फाइनल आउटपुट आप बनवाते हैं तो वो पैटर्न के थ्रू करवाते हैं नहीं या मैम, डायरेक्ट? डायरेक्ट एक्चुअली हम जो आउटपुट कराते हैं वो मसलिन में ही कराते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स आर द लर्नर. हम सीधे उन्हें फैब्रिक नहीं दे सकते हैं. नहीं 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 वो मैं समझती हूँ. मैं ये पूछना चाह रही हूँ जैसे एक बॉडी फॉर्म पे आपने फैब्रिक ड्रेप किया, उसके बाद उसको पैटर्न बना के उसको स्टिच करवाते हैं या No, डायरेक्ट ma'am, पैटर्न ma'am, से ही डायरेक्ट ड्रेप से ही काम यस करते हैं? मैम. सपोज बॉर्डर स्ट्रोक है, हाँ. आप बॉर्डर स्ट्रोक का पैटर्न भी बनवाते हैं हम स्टूडेंट्स को. फिर आप अगर ड्रेपिंग है तो वो ड्रेपिंग का भी पार्ट में आता है, तो उसे ड्रेप करके भी स्टिच कराते हैं. दोनों चीजें. सो क्या पैटर्न मेकिंग से बना हुआ बॉडिस और ड्रेपिंग से बना हुआ बॉडिस दोनों में फर्क आता है? नहीं. अगर आपने मेजरमेंट एक्यूरेट लिए हैं तो कोई डिफरेंस नहीं. So what is the first step? Suppose today is your first class with first year student. What would be the first step that you are going to tell them, and what is the first thing that you are going to teach them? First, I am introduced to pattern making and garment construction, Okay. and then how to take a body measurement to dummy and human figure. Means जैसे हम Okay. खड़े हैं तो हम अपना body measurement खुद ले सकते हैं. Actually, मैं बच्चों को जो पैटर्न बनवाती हूँ वो 1/4 स्केल पे नहीं होते हैं, वो फुल स्केल पे होते हैं. स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप स्टिच भी करते हैं. सो उन्हें एक दूसरे का मेजरमेंट लेना जिससे कि उन्हें मेजरमेंट लर्न हो कि कौन कौन से मेजरमेंट लिए जाते हैं इन फर्स्ट क्लास. बिकॉज वो कंफ्यूज नहीं रहेंगे कहाँ क्या बस्ट लेना है या अपर बस्ट का है, अक्रॉस बस्ट कौन सा लेना है या अक्रॉस फेस कौन सी लेनी है. तो वो कंफ्यूजन जो होता है वो चीज़ हो जाए क्लियर. And do you believe in having toils before final garment? Toils are the garments. आई नो टॉयज. You know toils. Okay. मैम टॉयज इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फैशन Shows. But you prepare your own garment or suppose any one garment. So it's Suppose not- आज आप क्लास में suppose अनारकली कुर्ता आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप वो बॉडी फॉर्म के मेजरमेंट से बनवाएंगे या बच्चों के मेजरमेंट से? मैम आई एम प्रिपेयर टू थिंग्स. फर्स्ट अ मसलिन मीन्स टॉयल, वो होता है स्टैंडर्ड पे जिसमें कि हमने पैटर्न बनवाएंगे बच्चों को जो हम ड्राफ्टिंग बताएंगे. वो स्टैंडर्ड साइज पे होगी कि बच्चों के साइज पे होगी? मैम टू बनवाएंगे ना. अच्छा, एक बच्चों के साइज का और यस एक मैम, एक स्टूडेंट के साइज का होगा और एक जो होगा एक उसके हिसाब से होगा. पर वो सिर्फ तो डबल टाइम कंजम्पशन. मैम नो, इट्स नॉट अ डबल टाइम कंजप्शन. आपने फर्स्ट जो दिया आपने स्टैंडर्ड का दिया. सपोज कि कल स्टूडेंट कहीं पढ़ाने जा रहे हैं, कल कहीं टीचिंग कर रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं होगा कि हमें खाली अपने बॉडी मेजरमेंट का आता है और का हम नहीं बना सकते हाँ हैं. जी. सो इसके लिए उन्हें डमी का भी पता होना चाहिए. या कि सपोज मेरे को मोमिता का ही बनाना है तो ये नहीं कि मैं अपने ही बना सकती हूँ, नहीं मैं मोमिता का भी बना सकती हूँ. वो चीज़ बच्चों को क्लियर होनी चाहिए. तो उसके लिए आई थिंक पहले उन्हें डमी का भी आना चाहिए. और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टूडेंट अपना ही बनाए, वो अपने फ्रेंड्स का भी बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा कि उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. All right. Thank you so much.